रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा, बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंबुजा और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुटा हूं आपके अपने ही चैनल यार फाउंडेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 इज पार्ट और इज मैटर प्योर अराउंड अस, और ये हमारा एंड सेक्शन होने वाला है गाइस। So before that, if you had not subscribed the channel till now, go and subscribe the channel, press the bell icon and join our Telegram channel. So without wasting our time, let's start this chapter and see the good things and see which are the topics that we have to cover in this video. So finally, I'm going to start. So finally guys, first of all, we will see certain basic things that we discussed in the earlier video, but we were not able to complete that yesterday video. So guys, first one, what is or which are matters? Actually we know that matters are those substances which have their own mass and volume. So guys, matter are further classified into two groups. दो भागों में फिर से बांटा गया। वे बांटा गया कि वे प्योरिटी के अनुसार, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्योरिटी दे आर फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। विच आर दे? तो पहला टाइप आपको पता है, मैंने पहले बताया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस। So what do you mean by pure substances? Actually yesterday I told you about the definition of pure substances. Means that a type of substance which contains only same part of particles or which contains only same atoms or same molecule. तो उसे हम लोग प्योर कहते हैं। लेकिन what do you mean by impure? Impure is totally opposite to that of pure. Means that कि प्योर में जो है वो इम्प्योर में नहीं रहेगा, या इम्प्योर में है जो प्योर में नहीं रहेगा। मतलब कि क्या कि इम्प्योर किसे कहते हैं कि जहाँ पे एक से ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो रहते हैं। So guys, finally we are going to see, I told you yesterday only, pure substances are further classified into which are compound and elements. Whether impure is only classified into one single mixture, and further mixture is classified into two, our homogeneous and heterogeneous. So without wasting our time, let's see the elements, what do we mean by elements and which are the elements. So चलो start करते हैं elements के बारे में। So finally guys, first we are going to define what do we mean by elements. Actually elements are those substances which contains only same kind of particles, means that atoms, and even we can't separate the particles by physical method or chemical method. तो ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट के द्वारा गाइस। तो ये हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्स आर those substances having same kind of atoms which can't be further separated, तो देखो भाई, हमें पता चलेगा कि एलिमेंट्स होते कैसे हैं। एक्चुअली गाइस, एलिमेंट का यह जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन, आपको यही याद रखना है कि एलिमेंट्स आर दो substances which have their same kind of atoms and which can't be broken even by physical method or chemical method। तो वहां पे लिख लेना P and C, यानी फिजिकल से भी नहीं होता है और केमिकल से भी नहीं होता है। लेकिन गाइस अब हमें जानना पड़ेगा कि एलिमेंट के पास स्पेशलिटी क्या होती है, यानी कैसे हुए स्पेशल होते हैं एलिमेंट्स, कैसे हुए प्योर सब्सटेंस बनते हैं। एक्चुअली प्योर सब्सटेंस का मैंने बता दिया कि वहां पे सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे एक एटम कहीं और का, एक एटम कहीं और का, और वे फिजिकली भी डिफरेंशिएट ना होता है, ना ही केमिकल, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ये तो हमें पता चल गया। अब देखो भाई, अब बात आ गई एटम्स। एटम्स क्या होता है आपको पता है, पहले से मैंने बताया। एक अगला चैप्टर हमारा क्लास 9 का पूरा बेस्ड है इसी पर, तो मैंने पहले वीडियो बना दिया गाइस। In last video only I told you about atoms. Atoms are the smallest particles of any substance. In biology we termed these substances as cells. Here we can see atoms. तो atoms नॉन लिविंग के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं। अब चलो बात करते हैं कि एलिमेंट्स होते कितने हैं। एक्चुअली गाइस, even till now only 118 elements are found। 118 elements फाउंड हुए हैं गाइस, जिसमें कि हमारा 94 जो है एंड 24 है। अब देखो ये 94 24 क्या है? 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स है, जबकि 24 हमारा आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, जिसे कि आर्टिफिशियली आपको पाया गया है। सो फाइनली गाइस, वी विल सी इवन इन दिस 180 एलिमेंट्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज metals, non-metals and metalloids. So first we are going to see what do we mean by metals, non-metals and metalloids. Actually guys, ये जो 180 elements है, इनमें बहुत सारे solids हैं, बहुत सारे liquids हैं, बहुत सारे gases हैं। Means that we can see the elements or we can see different elements in different form. It doesn't matter that we will get only same type of same form of element। means that sodium हमारा एक solid है, तो ऐसा नहीं कि कार्बन भी solid होगा, नहीं, कार्बन भी गैस भी है। तो ये हम लोग तो जानते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। So finally guys, as I told you, elements are further classified into three kinds.
which are they? On the basis of their properties, they are classified further into three kinds. First one is our metals. Second one, metalloids. Or leave it. Second one, non-metals. Otherwise you will get confusion. Non-metals. And the last one, guys. Wait. Last video also this happened, guys. You have to. So guys, we are discussing about the different classification of elements. So first one metals, second one non-metals, and the last one metalloids. Actually, these all three kinds of elements possesses their own nature, their own classification, or their own characteristics. So we will discuss first of all what do you mean by metals, what do you mean by non-metals, and what do you mean by metalloids. Actually, guys, you can think by your common sense that metals and non-metals, they means that they are totally opposite to their properties about each other, guys. Yeah, the same thing here also. But here we can see metalloids. Metalloids are having the property which is semi-matching, or we can say that they are having those properties which comes or which is having in both these metals and non-metals. यानी कि इनके पास ऐसा होता है प्रॉपर्टी जो कि मेटल्स में भी होते हैं और नॉन मेटल में भी होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहला हमारा मेटल से. तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी बता दूंगा, उसके बाद नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटलॉइड्स, देन वी विल गो थ्रू कंपाउंड. So guys, finally we are going to see the certain properties regarding each metal. So first property is they are malleable. So let me check the spelling. Malleable का spelling आपको दिख रहा है सही? मेरे को देखने दो. Yeah guys, all right. There is double L, so don't get confused. Yeah, what is malleable? Actually, malleable is those, or we can say malleable is a characteristic which is found in metals. So how we can judge whether a metals are malleable or not? Actually, malleable means that they can be beaten and they can be transformed into certain thin sheets. यानी metals के पास हमें तो ये पता है guys कि वे आसानी से thin sheets में कन्वर्ट किए जाते हैं, और ये उनका बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी होता है. मतलब कि क्या कि अगर हम लोग चाहे तो उन्हें पीट कर उनको शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. जैसे कि we know that guys several iron is there, copper is there. So these all metals can be transformed in different shapes by the property of malleable. Second property क्या है? Ductility. Malleable, they are malleable. Actually this is the property, not the type. ठीक है. Second क्या है हमारा? Ductility. What do you mean by ductility? Actually ductility possesses, or ductility is found in metals. How we can judge? Ductility is that characteristic which helps the metals to be transformed into thin wires. Which are the thin wires? यानी जहां पर भी आपको दिख रहा है कि thin wires में ट्रांसफॉर्म हुए हैं वहां पे metals होंगे ही होंगे. Third property guys, without wasting our time, let's see. Third property means that they are having high melting point and boiling point. High melting and you have to add here boiling point also. But there are certain exceptions that we will see. Even these also having certain exceptions, which are sodium and Na and potassium, calcium. These two are those metals which do not possess these all characteristics. Only few characteristics they possess. But the characteristics which we are discussing here all are only physical characteristics, not any chemical characteristics we are saying. Because according to the chemical characteristics only we judge whether any element is metal, non-metal or metal. तो पहले हम लोग बता दूंगा आपको गाइस कि यहाँ पे अब क्या होता है हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. तो एक मेटल ऐसा होता है जिसका की बॉइलिंग पॉइंट कहो इतना कम होता है कि ये इसे पोजेस ही नहीं होता. जैसे हम लोग यहाँ पे आयरन काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि हमें उसे शेप चेंज करने के लिए उसे काफी हीट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. जबकि हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं जिनका की बहुत ही कम होता है. आयरन के बारे में आपको बात करूँ तो 1535 डिग्री सेल्सियस पे वो हमें उसे हीट करना है, तब मैं उसे उसको मेल्ट कर सकते हैं गाइस, उसका शेप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. 1535 डिग्री, इसे याद रख लेना, ठीक है. लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका नाम है गैलियम. ये हमारा मेटल है, ठीक है. ये इतना कम है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है. यानी सोचो एटमॉस्फेयर में अपने हाथ के ऊपर रखे रहोगे तो ये आपको फाइनली आपको सॉलिड के फॉर्म में से लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा. मींस दैट इट पोजेसेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है गाइस? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा दे आर हाईली स्ट्रेंथ, और दे पोजेसेस हाई स्ट्रेंथ. So we can write here high strength. But here also we can see the same exceptional case is there. Sodium and potassium, जो कि ये दोनों हार्ड नहीं होता है. Even we can cut these two metals by knife also. चलो ये बात तो हो गई स्ट्रेंथ के ज्यादा. अब एक बात और, एक प्रॉपर्टी होता है सोनोरस. दे आर सोनोरस.
सोनरस क्या होता है? देखो, sonorous means that whenever they got struck at that time they produce sound, and the sound which is produced by them is for long interval, यानी बहुत देर तक। भाई जैसे आप लोग हमें जानते हैं, हम लोग घर पे जाते हैं, हम लोग we use what guys in our holy palace you might have seen that we are using bell। एक्चुअली जब बेल को हम लोग हिट करते हैं तो बहुत देर तक टन, तो ये आवाज क्या होता है? सोनरस प्रॉपर्टी को शो करता है। ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप कुछ बताए तो उसे देख लेते हैं हम लोग गाइस। तो गाइस टू प्रॉपर्टीज लेफ्ट, कौन कौन प्रॉपर्टी बच गया? सेकंड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा? दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेट, और वी कैन राइट हियर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Actually, most of the metals are having this characteristic, means that they are good conductor of heat and electricity. That's why we can see that in most of the purpose we are using metals only. As we can see our copper wire, वहाँ पर क्या होता है? मेटल्स अवेलेबल होता है। तो ये सभी बातें तो डिस्कस हो जाएगी। अब हमें कुछ और बताया क्या? तो लास्ट थिंग गाइस, इनके पास डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। दे आर हैविंग हाई डेंसिटी दैट वी कैन सी गाइस कि आयरन का डेंसिटी हमारा कितना होता है बताओ? आपको पता है 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमारा वाटर का 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि आयरन का जो हमारा इवन स्मॉल लेंथ आल्सो गोट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, पानी के अंदर डूब जाता है क्योंकि डेंसिटी इसका ज्यादा होता है। तो ये सभी बातें हो गई मेटल्स क्या। यहाँ पे जस्ट मैं नॉन मेटल लिख दूंगा और प्रॉपर्टी को जस्ट अपोजिट शो कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है गाइस जो कि इन्हें इन प्रॉपर्टी शो करता है। वो कौन कौन करता है? वो भी मैंने आपको यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम बता दिया और एक गैलियम, ये तीनों एग्जाम याद रखना। अब चलो एक बात और कर लेते हैं कि मेटल्स जो होता है मोस्टली सॉलिड के फॉर्म में होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस कौन सा है? देखो, एक एक्सेप्शनल केस है मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी ऐसा एक्सेप्शनल है क्योंकि ये लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है। इवन दिस मर्करी इज मेटल बट इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। तो ये एक्सेप्शनल है जो कि हमें याद रखना। और वहां पे नॉन मेटल में भी एक है ब्रोमीन, जो कि आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो फाइनली गाइस, इसके बाद अगर कुछ बचा है तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ और भी पूछना है तो मुझे बता देना। आप चलो बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू। तो फाइनली गाइस, वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू नॉन मेटल्स। और एक बात और, आपको अगर लग रहा है डॉट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है? क्लास 10 में यही टॉपिक हमें पढ़ना है। वहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल एक पूरा चैप्टर ही आपको मिलेगा केमिस्ट्री में। तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर एक प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ने को रहता है पूरा पढ़ लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं हम लोग। तो वही स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फाइनली वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग नॉन मेटल्स। एक्चुअली नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट, क्योंकि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। गैस तो बहुत, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी हम लोग जानते हैं ये सभी हमारे कैसे होते हैं गाइस? नॉन मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन में थोड़ा सा डाउट आता है, आपको छोड़ो। कार्बन जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं, ये सभी गाइस, क्लोरीन होता है, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं सभी को पता है। लेकिन अब बात करते हैं इनका जो एक एक्सेप्शनल केस है वो ब्रोमीन है, ठीक है? ब्रोमीन is the non-metal which is found in liquid state. Okay, so finally we are going to see about the different characteristics regarding to their malleability, ductility, low melting, low melting. So guys, first malleability. Actually they are not malleable, they are not ductile, they are brittle. ब्रिटल मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कि जब आप उसे थिन शीट में चेंज करने जाओगे तो वो टूट जाता है। जैसे सोडियम को तुम बीट करो, सॉरी गाइस सोडियम कहता हूँ, अगर आप चलो आप कोई कार्बन को ले लो, कार्बन को अगर आप ट्रांसफॉर्म करने जाओगे तो वो टूट कर बिखर जाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट गाइस, अबाउट लो मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कौन सा? ग्रेफाइट इतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका गाइस कि देखो तुम 37 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस, यानी सोच लो आयरन का 1535 मैंने आपको बताया, यानी आयरन के कंपेयर में कितना ज्यादा है तुम्हें बताओ? यानी ग्रेफाइट ऐसा है जिसका कि काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट गाइस, लो स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन यहाँ पे एक डायमंड है जो कि एलोट्रोपिक होता है, किसका? कार्बन का। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अभी तक हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है। सोचो एक्सेप्शनल केस कितना ज्यादा है। बैड कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी हीट को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करता है हमारा डायमंड। अब कुछ बचा है क्या? देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर कुछ बचा है। या डेंसिटी गाइस, एक्चुअली दे पोजेस लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होता है। तो इतना सभी बातें हम लोग कर लिए। अब एग्जांपल तो आप लोग दे दोगे, कार्बन, क्लोरीन, हमारा ऑक्सीजन, ये सभी एग्जांपल बहुत सारे हैं, अपने मन से आपको दे देना। अब चलो बात करते हैं मेटालॉइड की। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटालॉइड। So finally guys, we are going to see the properties regarding with metalloids. Actually metalloids, I already told you that they possess those properties which are semi similar with metals and non metals, यानी इनके पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि मेटल्स में भी होता है और नॉन मेटल में भी होता है।
तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें एक्सेप्शनल केस होते हैं। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो उधर मेल्टिंग पॉइंट कम भी होता है और कुछ में ज़्यादा भी होता है, तो उसे छोड़ो, बस इतना जानो कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ये आपको क्लास 10 में मैं डिटेल से बता दूंगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, boron. So guys, you have to write these examples. Actually, do you know how we can classify metals, non-metals and metals by their chemical form? Actually आपको बताऊंगा मैं क्लास 10 में डिटेल से, लेकिन थोड़ा जान लो कि हम लोग को पता है कि जो भी कोई भी एटम, जैसे मान के चलो मैं एक एलिमेंट का एटम ले रहा हूँ सोडियम, आई एम टेकिंग ए सोडियम, वी नो दैट सोडियम का एक एटम होता है, एटम के अंदर हम लोग को न्यूक्लियस मिलता है। वेट गाइस वेट, दिस इज व्हाट आवर नेटवर्क इशू।